Praise the Lord. Praise the Lord. I thank God for giving such a wonderful day in our life. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर हमारे जीवन में और एक नया दिन दिया। पिछला एक हफ्ता से लेकर जो वचन के ऊपर मैंने मनन कर रहा था वो वचन की छोटी सी बात मैंने आप लोगों से बताना चाहता हूँ। From last 1 week I was meditating upon one verse. So just want to share what are the things I have learned from this verse and I have learned from this portion. Once again I greet you all in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Indeed it is a great joy for me to stand here and preach from the word of God. And my teacher, my principal sir is here. It's a great joy for me to become a testimony in Christ and stand here and share the word of God in front of Him. I remember my final year sermon from Galatians chapter 6. मैं याद करता हूँ मेरा जो फाइनल ईयर जो sermon हुआ था, जो प्रचार हुआ था गलातियों का पत्र अध्याय 6 से. At that time I spoke in English and so today I will be speaking in Hindi. Most of the time I will be using Hindi language at the same time. I just want to use English also. That's why I said it's a great joy for me to stand here as a living testimony in Christ. मैंने और किसी नाम का और किसी कामों का एक गवाह बन के नहीं खड़ा हूँ। जो बातें हमारा टीचर लोग हमको सिखाया उसकी गवाह बनकर खड़ा होने के लिए बहुत मन के अंदर से बहुत खुशी और आनंद मैंने महसूस करता हूँ। परमेश्वर ने ऐसे कृपा और ऐसे एक रास्ता में मुझे लेके आया। एक बार हम सोच के देखा तो हम हमारा सोच विचार के अनुसार जीने वाला लोग ये तो आज इस खुशी का दिन हम नहीं देख पाएगा। हम सुबह उठने से लेकर रात तक इस दुनिया का लालच में और दुनिया का चीजों में हम फंसने वाले थे। वहां से God called us and He separated us, He selected us. परमेश्वर हमको चुना, हमारा नाम लेकर हमको बुलाया और हमको अलग किया। Of course, when He separates us, that time of pruning is a painful period. जब हमको परमेश्वर अलग किएगा, अलग क्या करेगा, वो जो समय होगा बहुत दर्दनाक होगा हमारा जीवन में, क्योंकि अलग होना बहुत मुश्किल है हमारे परिवार से, हमारा दोस्तों के बीच में से। उस समय तक हम कहाँ था वहां से परमेश्वर हमको अलग करता है। बट देयर इज ए पर्पस इन दैट सेपरेशन। एट दैट टाइम हम महसूस नहीं कर पाएगा परमेश्वर ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, मैं क्यों अकेला हूँ और क्यों मैं इतना दर्द का बीच में से गुजर के जाना है। And you know, most of the time you hear the good news or about gospel by saying you will get that or these blessings, kind of prosperity. वो मिलेगा करके वचन में और बुलाने वाले लोगों का। But the true gospel says that if you follow Christ, you have to take up the cross and follow, and that is very difficult. हम क्रूस उठा के उनके पीछे चलना बहुत मुश्किल है। मैंने आप लोगों के बीच में खड़े होकर बहुत बार ये बताया था। ये क्रूस उठाकर चलने की कहानी सुन के मैं भी बहुत जगह पर मैंने रुक गया था। Even I thought I will not do ministry, and the sir is in front of me. He knows one day I went to his office and I asked him I am leaving college. And today I stand here after completing my 5 years in a new theological college. It's a great joy for me. मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमको जो अलग करेगा वो अलग करने का समय दर्द होगा, फिर भी एक दिन परमेश्वर हमको ऐसा वाला जगह पर लेके जाकर खड़ा करेगा। हमको पूरा का पूरा अलग होने का दर्द, the pain and the suffering which we went through, we will find that there was a purpose or there is a purpose in our life. I always say that when devil is planning to make us fall, God has already planned everything for us and He selected us, He called us. But living in this world, हम इस दुनिया में जीने का समय ये बातों को समझने के लिए बहुत मुश्किल है। आइए आज का स्मरण के लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी उसका 14 अध्याय उसका 17 वचन। दूसरा तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 17। मैं आप लोगों के बीच में इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा। But the Lord stood by me and strengthened me, so that through me the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it. So I was rescued from the lion's mouth. किसी ने हिंदी में पढ़ी? परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा
और मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले मसीह के मुंह से छुड़ाया गया। आमीन। आइए हम थोड़ी समय के लिए आप बंद कर दो, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु, और एक नया दिन प्रभु आप हमारे जीवन में दान दिया प्रभु। आपको और एक वादा प्रभु हमारे जीवन में, और एक प्रोमिस हमारे जीवन में पूरा हुआ है प्रभु। आज का दिन हम देखने पाए प्रभु। जितने लोग इस वचन से सुन रहे प्रभु, और प्रिय सार को भी, और सुलेमान सार को भी, और दानियल सार को भी प्रभु, सबको प्रभु मैंने आपका हाथों में सौंपता प्रभु। हम सब आपकी चेला और आपकी सर्वेंट है प्रभु। आप जो सेवक है हमारा हाथों में आपने दिया, पूरी दिल से पूरी विश्वास के साथ करने के लिए प्रभु आप हमें स्ट्रेंथन करना प्रभु, मजबूत करना प्रभु। यही हमारा प्रार्थना है प्रभु। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। सो जो वचन हमने आज पढ़ा, दूसरा तीमुथियुस का 4:17-4:9 में एक वचन है। जब हम बाइबल कॉलेज में पहली बार गया, वहाँ सूरज पॉल सर हमसे, SPR सर, सामुएल बिराजन सर हमसे ये वचन लेकर बातें करते थे। 4:9 में, डू योर बेस्ट टू कम टू मी सर, और डू योर बेस्ट as you are in this training period। आप जो ट्रेनिंग के समर में है, आपसे जितना होगा उतना मेहनत करिए करके हमको सिखाते थे। उस समय हम उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उतना अच्छा से समझ नहीं पाया, क्योंकि हमको मन नहीं था ये सब कुछ करने के लिए, सीधा बताया तो। लेटर वी अंडरस्टूड, जैसा पौलुस इधर तिमोथी से ये बातें बता रहा है, मतलब पौलुस तिमोथी से कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तेरा जीवन का रास्ता तो यही है, और रास्ता में तू कैसे चलना है मैंने तुझको मेरी अनुभव से मैं तुझको लिख के दिखाता हूँ करके एक पत्री को लिखा। हमको पता है तिमोथी ने एफेसुस कलीसिया चला रहा था उस समय। वो कलीसिया चलाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत सताव आएगा, बहुत अलग अलग परेशानी, बात समस्या आएगा। सो पौलुस ने तिमोथी से पहले से ही कुछ बातें बताना चाहता है, आने वाला दिनों में ये बातें होगा, इसलिए तू कुछ बातें आगे से भी सोचने की जरूरत है। So we have to think ahead what is going to happen. So in verse 9 he says, do your best. After that he mentioned one brother's name, Demas. Yesterday while we were coming from airport, even we were talking from the, I was talking to Sar from this verse. At times हमारा साथ जो लोग आज तक खड़ा था, वो कल हमारे साथ नहीं होगा। शायद उनकी बात सुनते हुए मैं जीने वाला एक व्यक्ति है, तो जब वो वापस चले जाएगा मेरा मन भी कैसे हो जाएगा, अरे मेरा भाई तो चले गया, अभी मैं भी चले जाता हूँ, और मैं भी चले जा सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ ही प्रार्थना किया, मेरे साथ ही पढ़ाई किया, और मेरा साथ कल तक था। आज उन्होंने चले गया, फिर मेरा हालत क्या होगा। So Paul mentions that brother named Demas. So he says that he loved the present world. It is written there, Demas in love with this present world. वहाँ लिखा है अभी इस जाति कैसा है, वो दुनिया को उन्होंने प्रेम किया, हमारा पास से चला गया। So the background is पौलुस ने अलग अलग राजाओं की सामना करना पड़ा और सामना खड़ा होना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह का सेवकाई किया। हम प्रेरितों का काम अध्याय 9 पढ़ने के समय, जब पौलुस नहीं था, जब शाऊल था, उन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार एक सफर कर रहा था, अपनी मर्जी और अपनी इच्छा को लेते हुए दमिश्क का एक सफर में था। वो सफर के बीच में मसीह से मुलाकात हुआ। वो जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, 3 दिन के बाद जब वो पर्सनल एक्सपीरियंस से बाहर आया, जो जगह पर मसीह लोगों को सताने के लिए गया, वो जगह पर जाकर खड़े होकर क्या करते हुए वचन अध्याय 10 में हम पढ़ सकता है, और अध्याय 9 की बाकी भागों में पढ़ सकता है। वही दमिश्क का शहर में जाकर यीशु मसीह पर विश्वास करने का प्रचार कर रहा है। कल तक कौन था? 3 दिन के पहले तक कौन था? ऐसा वाला एक इंसान खड़े होकर प्रचार किया, तो सबसे पहले बात है, लोग तो नहीं मानेगा, लोग तो बोलेगा ये बंदा जो कल तक मसीह लोगों को सताते हुए हम देखा, आज मसीह पर विश्वास करने का प्रचार कर रहा है। एक बड़ा मुश्किल बात था पौलुस के जीवन में, इसलिए वो हर एक पत्री के शुरुआत में एक बातें लिख के जाता है। मैं हमेशा आप लोगों को याद दिलाता हूँ। तो दूसरा तीमुथी अध्याय 1 का 1 पढ़िए। पॉल an apostle of Christ Jesus by the will of God according to the promise of the life that is in Christ Jesus. So he clearly mentions that, पढ़ने वाले लोगों को ये बताना चाहता है, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं था इस सेवक बनने का,
मैं रोमियो का सेवक बनते हुए उनके लिए काम में था। मैं कभी भी नहीं सोचे सुसमाचार को बताओ, बट बाय द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा और निर्णय था मैंने ये करना है। इसलिए आज मैंने कौन होकर के बताया, एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जीसस। उसके बाद एक बात बताया, देयर इज अ प्रॉमिस ऑन मी, एक वाचा मेरा जीवन में है। और 4:17 पढ़ते हुए भी हम पढ़ सकते हैं। इसलिए पौलुस बताता है तिमोथी से, मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ, मेरे साथ कोई नहीं था, कल तक जो मेरे साथ था वो भी इस दुनिया का प्यार में चले गया, क्यों इस सताव उठाना है, इस सताव के बीच में से जाना करके चले गया। फिर भी मैंने तिमोथी में तुझको एक बात बताना चाहता हूं, बट वहां द कंस्ट्रक्शन बट या काय करके एंड करके जो इंग्लिश कंस्ट्रक्शन देखना है, ऊपर बताई हुई कुछ बातों का विरोधात्मक बात नीचे बताना चाहता है। अभी तक मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, फिर भी मैंने एक बात बताना चाहता हूं तिमोथी, मेरे साथ मेरा परमेश्वर खड़ा हुआ। जब मेरा जीवन में मैं थक चुका हूं, मैंने बैठ गया, तब मैंने ये महसूस किया वो मेरे साथ खड़ा है। He is not just standing by my side, and again he says, he strengthened me. वो मुझे क्या किया, सामर्थ किया और सामर्थ से भरा, क्योंकि मेरी इच्छा के अनुसार जीने के लिए नहीं, वो मेरे साथ इसलिए खड़ा हुआ, वो मेरे साथ खड़े होकर इसलिए मुझे सामर्थ दिया। मैं मेरी इच्छा के अनुसार और मेरी रास्ता पर मैं कुछ चलने के लिए नहीं, वहां लिखा है so that through me the message might be fully proclaimed। वहां क्या लिखा है, क्यों मेरे साथ परमेश्वर खड़ा हुआ, क्यों मुझको बचाया, क्यों मुझको पावर या स्ट्रेंथ दिया, एक उद्देश्य है। वो अध्याय 1 में भी बताया, there is a promise when I accepted his calling, when I experienced his presence, he spoke to me। तेरा जीवन से मुझे एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य के लिए तू कहां पे भी मुसीबत के बीच में से जाने का समय याद रखना मेरे प्रियो, वो तेरा साथ ही खड़ा होगा, वो तुझे स्ट्रेंथन करेगा। शायद हमारा जितना प्यार करने वाला किसी को भी हमारा बातों को समझ नहीं पाएगा, फिर भी कौन समझेगा हमारा दिलों को, परमेश्वर, क्योंकि he called me और he called us, उन्होंने हमको बुलाया। वहां लिखा है वो जो संदेश पूरा होने के लिए वो मेरे साथ खड़ा हुआ और मुझे सामर्थ दिया। वहां लिखा है the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it। So I was rescued from lion's mouth। जब हम पौलुस का मिशनरी लाइफ या पौलुस का सेवकाई पढ़ने के समय हमें कहां पे भी आपको ये नहीं सिखाया, we did not teach even you that Paul had to face even lions। पौलुस प्रेरित पौलुस ने शेर की सामना करना पड़ा करके हम कहां पे भी नहीं पढ़ा। इधर वचन में लिखने का समय ये वचन हमको ऐसा सिखाता है, वहां जितना बड़ा अधिकारी लोग था, पावरफुल लीडर्स था, उन लोगों को दिखाने के लिए पौलुस बता रहे तिमोथी से, वो शेर की सामना करने का अनुभव भी मेरा जीवन में आया। शायद नीरो राजा का सामना करना पड़ा और अलग अलग राजा और अलग अलग लोग उनको सताया था, उनका पावर के बारे में बताते हुए तिमोथी से बता रहे, वो शेर की मुंह से भी परमेश्वर मुझे, ये हम दानियल का किताब 6:22 में भी हम पढ़ सकता, दानियल में भी यही बताया। हम दोनों का कहानी में से एक बात हम सीख सकता है, when we stand for Christ, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के लिए खड़ा होगा, वो खड़ा होने के लिए जगह शायद शेर की गुहा के अंदर होगा और कितना बड़ा राजा के सामने भी होगा। अगर हम मसीह के लिए खड़ा हुआ तो हमको कुछ हानि नहीं होगा, क्योंकि there is a promise, there is a purpose yet to be fulfilled। एक उद्देश्य और एक वाचा मेरे जीवन में अभी भी पूरा होने के लिए बाकी है, इसलिए हमको कुछ नहीं होगा। यही बातें दानियल भी बताए, ऐसी यही बातें इधर पौलुस भी बताते हुए हम देख सकता है। जब मैंने बाइबल कॉलेज में था, मुझे अच्छा से पसंद मैं अच्छा से समझ नहीं पाया। लेटर ऑन बाद में मैंने मेरा पूरा कहानी आप लोगों से बताया था। When I understood this, जीवन में बहुत मुसीबतें आना शुरू हुआ। मैंने बताया था जब मैंने 14 साल में सेवकाई करना है करके एक मन का अंदर एक सोच आया, तुरंत न्यूज़ आया था मेरा पापा हॉस्पिटल में है, मेरा दीदी हॉस्पिटल में है।
सेम अनुभव था। जब हम कुछ अच्छा निर्णय लेता है, शैतान बहुत डर जाता है। शैतान बहुत डर जाता है, हमको गिराने के लिए अलग अलग बातें लेके आता है। हमने बहुत अच्छे से महसूस किया वो परिवार से ही शुरू होगा। बट इफ वी आर स्टैंडिंग फॉर क्राइस्ट, और हम मसीह के लिए खड़ा हुआ, तो he will stand by us. That's why Paul said, he stood by me and he strengthened me. कोई भी मुसीबत आए, कोई भी आंधी तूफान हमारे जीवन में आए, पीछे मुड़ने का कहानी हम बिल्कुल भूलना पड़ेगा। I will not turn back, Lord. I took a decision that I will do your ministry, or I will fulfill this purpose through my life. So I don't want to turn back. Even if I die here, let me die for your name's sake. But make sure in your faith you have to correct, you have to point out, you have to write down this. If you have here the promise of God, make sure even if you are standing in front of lion, it will not harm you, because the promise is yet to be fulfilled. So Paulus तिमोथी से सब बातें इसलिए बताना चाहता है, तूने सब कुछ अच्छा से करने सेवकाई में, इस दुनिया से तुझको इज्जत नहीं मिलेगा, इस दुनिया से तुझको शायद कुछ नहीं मिलेगा। You may even lose your life, but there is a reward. वो रिवार्ड के लिए तुम आगे दौड़ना। वो रिवार्ड बहुत लोग इस दुनिया में नहीं समझ पाया, मैं और आप समझ लिए, इसमें प्रभु का धन्यवाद करने का। वो रिवार्ड क्या है हमने बहुत गहराई से समझ पाया, इसलिए हम आज इधर आकर बैठा है। बीच बीच में सदर हमको गिराने के लिए बहुत अलग अलग संदर्भ लेके आएगा। सो आई ऑलवेज से इवन यस्टरडे सर वाज सेइंग दैट तुझको इतना अच्छा मौका मिला, कुछ बातें बताना है तो खुद की जीवन लेकर बता सकता है। मैं भी अभी इधर खड़े होकर, और जब से लेकर इधर हूँ 2 साल से लेकर, आप लोगों का बीच में कुछ होने के समय में मुझको वहां देख सकता हूँ, क्योंकि वही संदर्भ में मैं था। बहुत अच्छा से मैं समझ सकता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, सबका बीच में अलग अलग दासों की द्वारा उन्होंने मुझे स्ट्रेंथन किया, उनकी आवाज मेरा कानों में अच्छे से सुनाया। मैंने बताया था अभी जो हमारा कॉलेज का प्रिंसिपल सर है बिजू चाको सर, मैंने सब डिसीजन लेकर कॉलेज से वापस आने के लिए बैग भी पैक कर दिया, सब लोगों को बाय बोलकर लास्ट में सर के सामने गया। सर ने एक बात मुझे बोला था, तूने हार मान के जाने के लिए इधर आया क्या? वो एक ही क्वेश्चन मेरा हृदय के अंदर मैंने सोचा। मैं अभी तक कहाँ पे भी गया, बाइबल कॉलेज पढ़ा ही नहीं, बचपन से लेकर किसी के सामने भी गया, नो करके नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने हाँ ही बोल देता हूँ। दूसरी बात, मैंने कहाँ पे भी हार नहीं माना। मैंने रूम में वापस जाके सोचा, कितना अच्छा से एक बात है मेरे दिल के अंदर सर ने घुसाया, हार मान के जा रहा। मैंने सोचा अगर फेल हुआ तो भी चलेगा, अभी पूरा करके जाना। उसी समय मेरा मन का अंदर एक सोच भी आया, जब से लेकर एक अच्छा डिसीजन मैंने लिया तब से लेकर मुसीबतें बहुत 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 आएगा, वो बहुत अच्छा से मैंने एक्सपीरियंस भी किया। उसके बाद में बताया था कोरोना का समय में बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम सब बंद हो गया, कलीसिया बंद हो गया, बाइबल कॉलेजेस बंद हो गया, कोई रास्ता नहीं आगे चलने के लिए। फिर भी मैंने मेरी मर्जी के अनुसार एक रास्ता बनाते हुए जा रहा था, जैसा पौलुस ने दमिश्क की रास्ता पे जा रहा था। एक दिन वो पर्सनल एक्सपीरियंस जब परमेश्वर से हुआ, मैंने समझ लिया मुझसे मेरा जीवन में कुछ भी करने का नहीं होगा। आई कांट डू एनीथिंग फॉर माई लाइफ, बिकॉज देयर इज अ कॉलिंग, देयर इज अ पर्पस इन माई लाइफ। अगर मैं वो रास्ता के अनुसार नहीं चला तो मेरा जीवन में मैंने आनंद महसूस नहीं कर पाएगा। सो आई अंडरस्टूड दैट देयर इज ओनली वन वे इन माई लाइफ। एंड ऑफ कोर्स माय फादर एंड मदर दे यूज्ड टू प्रे फॉर मी अ लॉट। वो बहुत प्रार्थना करते थे। मेरा पापा तो ऐसा बोलते थे, एक दिन ये प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ था मेरे लिए काफी। वो बहुत खुशी है अभी 2 साल से लेकर प्रचार करते हुए मैंने आप लोगों के सामने भी खड़ा हूँ, सिर्फ परमेश्वर की दया और करुणा से, और उनकी आत्मा की और उनकी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से। मैं कभी कभी पीछे मुड़ के मेरा कहानी को देखता हूँ, आज मैंने इधर खड़े होकर मेरे साथ के सामने खड़ा होने के लिए लायक भी नहीं था। That was my life। इसलिए मैं बताता हूँ, बहुत लोग विश्वास नहीं कर पाएगा, but when God calls us and when He change our life, we are a new creation। Old is old, that is already gone। So when we get that new experience in Christ, the new life in Christ, you have to make sure that there is only one way you have. That way is
maybe Paulus is traveling to Damascus only, but the purpose got changed. दमिश्क के रास्ते में ये पौलुस फिर भी वहां पहुंच के करने का काम बदल गया। क्या करने के लिए गया था? इसलिए तिमोथी से बताया वो प्रॉमिस मेरा जीवन में अभी भी है। और एक बात बताना चाहता, पौलुस ने जब इस पत्र को लिखा, हम इसका बैकग्राउंड पढ़ सकता है, इन्होंने इनका मृत्यु को सामने देखते हुए he saw his death in front of him, yet he says that I thank God, because उनका उद्देश्य मेरे जीवन में आज खत्म हुआ तो कल मेरा मृत्यु मेरे जीवन में है तो मेरे लिए there is no problem, because the promise already fulfilled। मतलब परमेश्वर का उद्देश्य मेरा और आपका जीवन में जब पूरा होगा तब सोचना हम जाने का तैयारी में हैं। Till that moment God will rescue us, He will strengthen us, He will stand by us, because the promise is yet to be fulfilled। So I just want to read one more verse, that is verse 18। The Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into His heavenly kingdom. To Him be the glory forever and ever, amen। So he ends by saying, I am sure that He called me and He will fulfill that calling in my life, so I don't want to be afraid of anything। So coming back to our present context, we have many Paulos in our life। So if I consider myself as a Timothy, the Paulos is sitting here, so teacher is sitting here, he also taught us many things in his humbleness। At the same time we did many wrong things, but at that time we sat down and we understood that जो बातें हमारे जीवन में हुआ सब बातें भलाई के लिए हो गई, बिकॉज परमेश्वर ने मुझे प्यार किया था। वो अनोखा प्यार मेरे जीवन में हमेशा हमेशा था। इसलिए जब मैंने गिर गया, जब मैंने उनको इनकार भी किया, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, एक सही रास्ता पर लेके आया। सो मैं बताता हूँ, मैं आज जो रास्ता में हूँ वो रास्ता, मैं जो रास्ता के बारे में सोचा था वो नहीं है। The road where I am standing today is not the road where I was thinking to go, but मैंने वो जो रास्ता पर आज खड़ा हूँ और आप वो जो रास्ता पर आज है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो रास्ता था वो रास्ता पर है। The road where you and I are standing, that is the road, that is the will of God। So make sure in this journey what all the needs you have, at the same time you have many wants, what all the needs you have in this journey, make sure that जो जरूरत है, आवश्यकता आपका जीवन में है, परमेश्वर जरूर पूरा करते हुए आगे लेके जाएगा। क्योंकि again I just want to repeat that through me, so that through me the message might be fully proclaimed। समझ आया होगा आप लोगों को आज की छोटी सी चिंता। Once again I just want to thank everyone, I want to thank God all over everything। In His love He called me, He separated me। Maybe I don't have much friends in my secular field or anything, but बहुत खुशी और बहुत आनंद के साथ सेवा करने के लिए प्रभु एक अच्छा मौका दिया। At that time I used to think, परमेश्वर मैंने जो बातें 5 साल सीखा, मैंने कहाँ जाकर किसको बताना है, क्योंकि there is no way। You know प्रिंस सर और हमारा प्रिंस सर अभी साथ जो कॉलेज में पढ़ा रहा है, वहाँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में सेवा कर रहा है। जो लोग मुझे मदद दिया, मैंने सबको बहुत धन्यवाद करता, क्योंकि एक पौलुस की समान हमारे जीवन में अलग अलग संदर्भ में अलग अलग लोग आ जाता है, वो हमें सच्चाई को खुल के बताता है। इसलिए हम भी आज इस रास्ता पर है। और एक बार सबको धन्यवाद करते हुए, एक छोटी सी प्रार्थना करते हुए मैंने आज के इस मनन को मैंने समाप्त करना चाहता हूँ। आइए हम आँख बंद करते हुए इस वचन को मन में डालते हुए एक प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, ये जो वचन प्रभु सुबह आपने मेरा कानों पर सुनाया प्रभु, लॉर्ड मैंने आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जैसा तिमोथी को पौलुस ने बताया, मेरे जीवन में प्रभु आप मेरा टीचर है, आप मेरा अध्यापक है प्रभु। बहुत बातें आप मुझे सिखाया। शायद दुनिया पर मैंने एक मूर्ख की समान होगा, फिर भी आपकी नजरों में प्रभु मैंने एक अच्छा सेवक बनना चाहता हूँ प्रभु। इस दुनिया में मैंने कुछ भी हो नहीं पाए प्रभु, मैंने आपके सामने एक अच्छा सेवक होने के लिए दौड़ता हूँ प्रभु। आई विल डू माई लेवल बेस्ट, क्योंकि आपने मुझे प्यार किया और मुझे बुलाया, मुझे सेपरेट किया प्रभु। Maybe my journey is painful, but I can experience you day by day, minute by minute।
दैट इज इनफ फॉर मी। वो मेरे लिए काफी है प्रभु। मेरा परिवार को, मेरा कलीसिया को, मेरा गांव को, मेरा देश को प्रभु मैंने आपके हाथों में देना चाहता हूँ प्रभु। बहुत लोग पढ़ने के लिए इच्छा है, फिर भी एक अच्छा जगह उनको नहीं मिल रहा प्रभु। ऐसा वाला समय में हमारा जीवन में इतना आशीर्वाद आप मुझे दिया प्रभु। प्रभु हम लोगों को बुलाकर उनको वचन के बारे में सिखाने के लिए आप मुझे चुना और अलग किया। दैट इज एनफ फॉर माय लाइफ लॉर्ड। I submit rest of the time and rest of the thing into thy care. In Jesus' precious name, we do this prayer.